Hello friends, now we are moving towards a very interesting topic, transfer pricing. आपका जो ओल्ड सिलेबस है वहाँ उसका वेटेज है 4 मार्क्स से लेकर 8 मार्क तक. फ्रीक्वेंसी यू कैन टेक इट 5/10. 10 पेपर में आपको 5 बार टीपी मिलेगा. This is the marks that you need to take care. It's more of theoretical topic. It is very subjective. ये टॉपिक क्या है? पूरा सब्जेक्टिव. जैसे संस्कृत में बताया गया है टुंडे टुंडे मत भिन्ना. तो जितने सिर उतने इसके ऊपर ओपिनियन निकल सकते हैं ये टॉपिक के लेकर. That's why it is very easy also that way, because it is your thinking, your understanding, and you need to read the rules. तो वाई चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग पहले वो समझे तो आई थिंक यू कैन जंप इनटू द टॉपिक. ठीक है. आई एम गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल. टेक इट दैट one entity is here called a partnership firm. 2 partners are there. They exports goods. They are from India. They exports goods to US. And average their margin is, gross margin is 25%. Now, that means India will have margin declared in India is how much? 25. And it is a partnership firm. What is the tax rate applicable? 30%. What they will do? They have got one brother. मान ले he is at Mauritius. He is at what? Mauritius. So what partnership firm will do? It will first exports goods or invoicing. It will do it on Mauritius. Here we can take it one brother is there who had opened a proprietorship in Mauritius. So this firm will exports by documentation to Mauritius. And Mauritius in turn will export to whom? US party. Suppose if it is possible in terms of, not difficult in terms of route also. So what it will do? Here they will charge only 5% margin, gross margin. And remaining 20, Mauritius company will add before exporting to whom? US. In this case, India is going to tax a gross margin of what? 5%. Actually, it is how much? 25. And you are able to do this jugglery. Why? Because in Mauritius, some related party is there who can tackle your transaction. So what you are doing? India's legitimate 25% margin, you are splitting between India and Mauritius. And Mauritius is a tax haven country. Income tax rate is very nominal. Even long back I have heard when I was sitting in this planning, I was saying, no, they don't do that. Mauritius tax rate at the time was only 1%. How much? Income tax? 1%. Only 1%. So my 20% gross margin would be taxed only at what rate? 1%. Here it would be taxed at what rate? 30%. So I can play with this pricing. Why? Because this person is related to me. This person is known to me, associated to me. That's why chapter transfer pricing was introduced. That India should introduce a mechanism. India can challenge transaction between whom? Partnership firm in India and whom? The firm in Mauritius. That you prove it.
कि आपने जो भाव से एक्सपोर्ट किया मॉरिशस में, इज इट एट आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट। अगर कोई थर्ड पार्टी मॉरिशस में होती, आपकी अनरेटेड पार्टी, तो क्या आप ये 5% ही मार्जिन लगा दे? यू प्रूव इट। अगर लगाते तो बात बराबर है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अरेंजिंग माई ट्रांजैक्शन इन सच ए मैनर, plus I am arranging a price in such a manner that legitimate taxable income in India will get what? Reduced. Why? Because we are having higher tax rate. Exactly उल्टा भी कर सकते हैं. That already I have discussed in section 9 if you recollect. वापिस देख लेते हैं. मान लो मैं US मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने ब्रांच खोल दी इंडिया में. एंड ब्रांच इन इंडिया इज डूइंग रिटेल सेल. ठीक है. आई एम ट्रांसफरिंग गुड्स हियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विच प्राइस? ट्रांसफर प्राइस. नाउ माय कॉस्ट at US is 800. I am transferring for 1200. That all we have discussed. Then there is a margin called 400. This is which profit? Manufacturing profit. That can never be taxed in India because manufacturing operations took place where? Outside India. And then branch will do further sale for 2500. Now when we prepare branch profitability statement, then sales we have recorded 2500 minus cost क्या लेंगे? ये गुड्स की ट्रांसफर प्राइस, दैट इज हाउ मच? 1200 माइनस ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस है वो मान लो 600 रुपये है. तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 700 रुपये. तो आई कैन प्ले विद दिस प्राइस क्योंकि इंडिया में 800 से 1200 400 रुपये टैक्स नहीं होने वाला है. क्या टैक्स होने वाला है? 1200 का आपने 2500 में बेचा, उसमें आपके खर्चे माइनस करके जो बचा उसके बाद आपको इंडिया में टैक्स देना है. तो आई कैन प्ले विद दिस प्राइस. मैं 1200 क्यों ट्रांसफर करूं? मैं मेरी ही तो ब्रांच है. मैं कस्टम डॉक्यूमेंट में लिख दूं कि इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 1800 है. जैसे मैं यहां 1800 करूंगा कॉस्ट यानी ट्रांसफर प्राइस, क्या होगा? I am required to pay tax only on how much? 100 rupee. Now these operations are taking place where? In India. Then India I will pay tax only 100 rupee. And this 800 to 1800,000 I will declare in my manufacturing country, which is a tax haven country. तो वहाँ टैक्स मुझे कम देना पड़ेगा. तो I can play with this transfer price. तो चैलेंज दी गई उन्होंने. क्या चैलेंज दी? कि you should prove that transaction is done at which price? Arm's length price. यहां मेरी सब्सिडी कंपनी हो सकती है ब्रांच को छोड़कर. चलो, देयर कैन बी विच कंपनी? सब्सिडी कंपनी. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग? दैट इंडिया शुड नॉट लूज इट्स लेजिटिमेट टैक्स रेवेन्यू एंड व्हाट एवर प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी विच रिक्वायर्स टू बी डिस्क्लोज इफ डीलिंग वुड हैव बीन डन विथ होम? थर्ड पार्टी, अनरेटेड पार्टी. इट इज सिमिलर टू लाइक सेंट्रल एक्साइज कंसेप्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू का. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट ट्रांसफर प्राइसिंग, दैट इंडिया शुड नॉट लूज इट्स लेजिटिमेट रेवेन्यू. ये चैप्टर सालों से फॉरेन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था. वी वर स्लाइटली लेट एंड इन 2002-3, दैट इज ए फाइनेंस एक्ट 2001, वी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक. तो फर्स्ट क्वेश्चन देव टेस्टेड एज अ थियरी. आप सब्सिडी डाल दे, दैट इज बेटर. ब्रांच को छोड़ के भी सब्सिडी भी डाल सकते हैं. तो by playing transfer price, you can reduce taxable income where? In India. ठीक है. तो अब मैं पढ़ रहा हूँ थियरी. दिस दे हैव टेस्टेड फॉर 6 मार्क्स. याद रहे टीपी में वो थियरी भी पूछते हैं, इसलिए थोड़ा तनाव पैदा होगा, बट होने थे. क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव में? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 2 or more एंटिटीज बिलोंगिंग टू सेम मल्टीनेशनल ग्रुप can fix up their prices for goods and services and allocate profits among
group in such a way that, underline करें, there may be either no profit और क्या लिखा है, negligible. तो मैंने 100 रुपये बताया आपको, आइडियली होना था 700, लेकिन मैंने इस तरह रीअलोकेट किया कि नेग्लिजिबल प्रॉफिट उस जुरिस्डिक्शन में दिखा है और सब्सटेंशियल प्रॉफिट कहां दिखा है, अंडरलाइन करें, टैक्स हेवन में. इसलिए जो जिसको बेचारे को सही टैक्स मिलना चाहिए जिस कंट्री को, दैट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. और ज़्यादातर मल्टीनेशनल ग्रुप जितने भी फॉरेनर्स हम इनवाइट करेंगे, दिस आर ऑल दी पॉसिबिलिटीज. इसलिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया टू इन्वेस्टिगेट एंड टू सजेस्ट दी मैकेनिज्म. तो थर्ड ब्लैक नोट पढ़े. एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट सेटअप एन एक्सपर्ट ग्रुप to check it out or to examine the issues relating to what? Transfer pricing. And as a result, we were successful bringing the law in 2001. और आपको ये लिखने के पूरे मार्क मिलेंगे. इतना आपने लिख दिया, which can lead to computation of, 3 वर्ड पकड़ लेने हैं, reasonable, fair and equitable profit as well as tax fair in India. ये 3 वर्ड आना चाहिए. फिर धीरे धीरे क्या देखा हमने, जैसे आप पढ़ चुके हैं ATIA, ATIB सारी सेक्शन 10AA, मेरा एक यूनिट SEZ में है, दूसरा यूनिट SEZ के बाहर है, तो SEZ में तो मुझे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, तो SEZ एरिया इज नथिंग बट व्हाट, टैक्स हेवन एरिया. ATIA, ATIB में मुझे 100% डिडक्शन मिलता है, तो दैट जोन इज व्हाट, टैक्स फ्री जोन. और मेरे दूसरा यूनिट चल रहा है टैक्सेबल जोन में, जिसको आप बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया. तो आई कैन प्ले ऑफ इन सच ए मैनर कि SEZ की यूनिट में ज़्यादा प्रॉफिट दिखे क्योंकि वहाँ कोई टैक्स नहीं है, और डोमेस्टिक एरिया का जो प्रॉफिट है मैं वहाँ कहाँ शिफ्ट कर दूँ, SEZ में, बाय ऑल्टरिंग व्हाट, इंटर यूनिट ट्रांसफर. इसके लिए उन्होंने कौन सी सेक्शन लगाई, 92BA, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. तो लास्ट ब्लैक डॉट, फ्रॉम AY 13-14 we have introduced transfer pricing for domestic transactions as well. Next, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? ताली एक हाथ से बजती है कि 2 हाथ से बजती है? 2 हाथ से. इसलिए चैप्टर कब अप्लाई होगा? कंडीशन 1, एक तो 2 और मोर एंटरप्राइज होने चाहिए, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. बराबर है ना, गड़बड़ तभी हो सकती है. दूसरी कंडीशन, ये ऐसे एंटरप्राइज होने चाहिए कि दे आर एसोसिएटेड, दे आर व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एंड तीसरी, उन्होंने कोई पराक्रम कर दिया है. क्या पराक्रम कर दिया है? पैरा 2.3, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दे हैव कैरिड आउट. तो थोड़ा बहुत बैठ रहा है आपके दिमाग में. तो किसकी जिम्मेदारी है? ओनस, बर्डन किसके पर है? टैक्स पेयर पर. उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज डीलिंग विथ सब्सिडी इज नथिंग बट एट विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस. तो किसकी जिम्मेदारी है? ओनस, बर्डन किसकी जिम्मेदारी है? टैक्स पेयर की. और ये जिम्मेदारी डिस्चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स, प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. और जब असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटिनी में मेरे को पूछे कि इज इट आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट टू द ऑफिसर कि सर दिस इज द एक्सेस आई हैव डन, एंड देखो अननेटेड पार्टी में ये भाव चल रहा है और मैंने उसके नजदीकी भाव चार्ज किया है. किससे? मेरे एसोसिएटेड एंटरप्राइज से. अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए, आपके डॉक्यूमेंटेशन से, आपके डेटा जो आपने यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए, उससे एओ संतुष्ट नहीं है, देन एओ कैन ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट, आर्म्स लेंथ प्राइस. तो ये सारा हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली. तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये चैप्टर किसको अप्लाई होगा. व्हाट आर द कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज वेरी इजी, देयर मस्ट बी 2 और मोर व्हाट, एंटरप्राइज. उसमें एंटरप्राइज का डेफिनेशन दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है. एंटरप्राइज मीन्स ए पर्सन इंक्लूडिंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. तो मैंने बता दिया PE है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एंटरप्राइज. ब्रांच है तो हु एंगेजिस और हैज बीन एंगेज और प्रपोज टू एंगेज, 3 वर्ड डाल दिए. तो एंटरप्राइज को बोलेंगे हु हैज बीन एंगेज, हु एंगेजिस एंड हु इज प्रपोज टू एंगेज. सारी एक्टिविटी डाल दी.
एक्टिविटी रिलेटिंग टू सप्लाई, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ आर्टिकल. पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपके बारे में लिख रहे हैं, आर्टिकल क्लार्क के बारे में लिख रहे हैं. सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल. सेकेंड, नो हाउ, पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, एनी अदर राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर. लास्ट 2 लाइन को अंडरलाइन करें. ऑफ विच अदर एंटरप्राइज इज द ओनर, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अदर एंटरप्राइज हैज एक्सक्लूसिव राइट. तो नहीं, कभी कभी आप देखते हैं पेप्सी कंपनी है, तो पेप्सी की जो मेन कंपनी होगी उसके पास सिर्फ नो हाउ ही होंगे, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा. एंड दैट नो हाउ दे विल गिव टू होम वेरियस सब्सिडीज अक्रॉस द ग्लोब, एंड फ्रॉम दैट दे विल अर्न व्हाट, रॉयल्टी. तो ऐसी कंपनी भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एंटरप्राइज. थर्ड, कोई भी सर्विस एंटरप्राइज, तो सर्विसेज ऑफ एनी काइंड आप दे रहे हैं, देन यू आर कॉल्ड व्हाट, एंटरप्राइज. Then you are carrying out work under contract in pursuance of contract. Then also it is called what? Enterprise. Or you are carrying out investment activity is called what? Enterprise. Or activity for giving loans. Or buying, acquiring, holding, dealing with shares, debentures. That activity is also called what? Enterprise. उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि ये एक्टिविटी आप डायरेक्टली कर रहे हैं या आपकी यूनिट्स या डिवीजन या सब्सिडी से कर रहे हैं, बट यू आर डूइंग व्हाट, एक्टिविटी, देन यू आर कॉल्ड व्हाट, एंटरप्राइज. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, बट सेकंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटरप्राइज मस्ट बी एन व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज. और उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 92A में कि कब वो एसोसिएटेड कहलाएंगे. ठीक है, तो वहां लिखा है वन एंटरप्राइज इज रिगार्ड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ अनदर. तो वन इज एसोसिएटेड टू अनदर इफ इट पार्टिसिपेट्स. तो वन एंटरप्राइज पार्टिसिपेट, दोनों वर्ड लिखे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिर आगे पता नहीं, इनडायरेक्टली लिखने के बाद भी आगे लिखा है थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी, एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ वर्ड इंटरमीडियरी इज गिवन. तो दे पार्टिसिपेट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और थ्रू और वन और मोर इंटरमीडिएट. वेयर दे पार्टिसिपेट, 3 वर्ड याद रखने आपको, मैनेजमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइज, कंट्रोल ऑफ अनदर एंटरप्राइज और कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज. 3 वर्ड, मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल. तो वी कैन से दैट 2 enterprises आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज when one enterprise control, manage or capital, it participate in control, capital or management of what? Other enterprise. नंबर भी पढ़ेंगे तो अब आपके सिर के बाल खींचेंगे कि सर ये क्या लिखा है. In respect of it, one or more person who participate directly, indirectly, through one or more intermediate in the management or control or capital, are the same person who participate directly, indirectly, through one or more intermediate in the management or control or capital of what? Other enterprise. तो अंडरलाइन करें, आर द सेम पर्सन. क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? पहला तो समझ में आया कि एक एंटरप्राइज कंट्रोल विच एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज, और एक एंटरप्राइज हैज गॉट कैपिटल स्टेक इन व्हाट, अदर एंटरप्राइज. तो हम समझ सकते हैं कि दे आर कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज. लेकिन ये क्या कहना चाहता है नंबर बी? नंबर बी समझ में आया कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, दूसरी तरफ एक मेल मेंबर खड़ा है, और तीसरे डायरेक्शन पे एक लेडी खड़ी है. तो एक थोड़े दूर डिस्टेंस है, सामने अपने जैसे बैठे हैं उसने, एक लड़का खड़ा है, छोटा सा बच्चा है, एक मेल मेंबर है, और एक तरफ एक लेडी खड़ी है. अब लेडी इशारा करती है या कुछ बोल रही है तो बच्चा शांत हो जाता है, उसको सुन रहा है ध्यान से. और लेडी जब वो मेल मेंबर से भी बात करती है तो मेल मेंबर उसको अच्छी तरह से सुन लेता है. इसका मतलब क्या हुआ? that बच्चा और that male member definitely they are what? Associated, because they are subject to control of what? Same lady called Mrs. X. तो मिस्टर एक्स भी बेचारे शांत हो जाते हैं.
जब भी मिसिस एक्स कुछ बोलती है तो मिस्टर एक्स हाँ हाँ बताइए बताइए क्या था, हाँ मैं देख लेता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें। तो एकदम बेचारा ओबीडियंटली उसको सुन लेता है। और एक तरफ बच्चा है, वो भी माँ की बात क्या कर लेता है, मिसिस एक्स की बात सुन लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा और वो मेल मेंबर डेफिनेटली दे आर व्हाट, एसोसिएटेड। तो दैट इज व्हाट दे वांट टू से इन नंबर बी। समझ में आया? दे आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेम पर्सन। एक एंटरप्राइज है, उसका कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास है और उसी व्यक्ति के पास दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। देन दिस टू एंटरप्राइजेस आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटेड। जैसे इजी एग्जांपल बताऊं, अब समझ में आएगा। लेडी की बजाय अपने मुकेश अंबानी जी को रख देते हैं। अब मुकेश अंबानी जी की एक कंपनी में 40% होल्डिंग है, 40, ए लिमिटेड कंपनी में, और मुकेश अंबानी जी की दूसरी कंपनी में बी लिमिटेड है, वहां 50% होल्डिंग है। तो मुकेश अंबानी होल्ड्स कंट्रोल ऑन ए लिमिटेड एंड मुकेश अंबानी ऑल्सो होल्ड कंट्रोल ऑन व्हाट, बी लिमिटेड। दैट मीन्स ए एंड बी आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ विच पर्सन, सेम पर्सन। देन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। लोग पिक्चर दौड़ते, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। कुछ है नहीं, पिक्चर तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ए क्या कहता है कि वन पार्टिसिपेट इन अनदर, एंड बी क्या कहता है दैट समबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन बोथ द एंटरप्राइजेस, देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो आई थिंक ए एंड बी इज क्लियर। अब थैंक गॉड दे हैव गिवन अंडर द लॉ डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। क्या लिखा है, डीम्ड। डीम्ड यानी लॉ में करना पड़ेगा क्या डीम किया है। तो उन्होंने 13 कैटेगरीज डीम्ड की है। कितनी? 13। ये आपको याद रखनी है। ऐसे तो ये पूरा याद रखना है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। 13 में मुझे लास्ट वाली बहुत पसंद है। अब जब आप डीम करने बैठे थे तो फिर पूरा लिस्ट डीम कर देना चाहिए ना, फिर उसको ओपन लिस्ट क्यों रखना चाहिए? लास्ट में क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट बिटवीन टू एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, हु विल प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब। अब इतना 12 आइटम तो प्रिस्क्राइब कर दी, तो और कर लो जो करना है यार, और तुम्हारे हाथ में तो पावर है सारे। जब आप डीमिंग ही करने बैठते थे, अब डीम कर लिया तो फिर पूरा कर लो डीम, जो भी करना है। नहीं, कभी कभी हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कि पार्टी में से एक एक्टर और एक्ट्रेस देर रात को साथ में निकले, तो उनके बीच में कुछ है, बस ऐसा। सीरियल नंबर 13, देयर एग्जिस्ट बिटवीन टू एनी रिलेशनशिप ऑफ विच इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब आप लिख पाएंगे उसको एग्जाम में, लेकिन उसको कौन प्रिस्क्राइब करेगी? गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो 13 नंबर एग्जाम में टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ प्रिस्क्राइब है ही नहीं अभी। अब वापिस पढ़े लेफ्ट साइड, डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। टू एंटरप्राइज shall be deemed to be associated enterprise if underlying करें at any time during the year. I repeat, at any time during the year. I repeat, at any time लिखा है, यानी एक आध दिन भी, एक आध घंटे भी आपने कोई कंडीशन फुलफिल कर ली, तो आप कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर लेंगे, तो आप चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग के दायरे में फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है, चलो पढ़े। नंबर 1, one enterprise holds directly or indirectly shares carrying not less than 26% of voting power in other enterprise. तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? कंट्रोल हुआ, कैपिटल हुआ कि मैनेजमेंट हुआ? कैपिटल। तो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में 26% इक्विटी होल्ड कर रहा है। तो जैसे एग्जांपल ले, ए लिमिटेड होल्ड्स 26% इन बी लिमिटेड, देन ए एंड बी आर कॉल्ड व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, तो उसके बाजू में लिखे आप शॉर्ट में 26% वीपी, मैंने जगह रखी है लेफ्ट साइड शॉर्ट में, 26% वीपी। %26 वीपी। तो ए लिमिटेड होल्ड्स 26% voting power in what? B limited. Then they both are called what? Associated enterprise. सेकंड पढ़े आप, अब समझ आएगा सेकंड आसान से। Any person who holds directly indirectly shares not less than 20% in, underline करें, each of such enterprise. तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना वो वाला, एक तरफ लड़का
रो रहा था, किसी ने आंख निकाली, किसी लेडी ने, एकदम लड़का शांत हो गया। एक तरफ मेल मेंबर आगे पीछे घूम रहा था, लड़की ने आंख निकाली, मेल मेंबर ठिकाने पे आ गया। दैट मीन दे आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेम पर्सन। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ? पहला एग्जाम्पल, ए लिमिटेड होल्ड्स हाउ मच इक्विटी? 26% वोटिंग पावर ऑफ व्हाट? बी लिमिटेड। सेकंड का एग्जाम्पल, मान ले पी लिमिटेड होल्ड्स 26% इन क्यू लिमिटेड and P Limited also holds 26% voting power in R Limited. So P and Q are associated as per point number 1. P and R are also called what? Associated as per what? Point number 1. But Q and R called associated because of what? Point number 2. Why? Because Q and R are subject to control of each person, same person. समझ में? यहाँ मिसिस एक्स रख दीजिए, यहाँ छोटा बच्चा रख दीजिए, और यहाँ मिस्टर एक्स रख दीजिए। तो मिस्टर एक्स एंड चाइल्ड आर कंट्रोल, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ होम मिसिस एक्स। दैट मीन्स मिस्टर एक्स एंड चाइल्ड आर व्हाट? एसोसिएटेड। ऐसी बात होगी। तो आई थिंक क्लियर। तो पी लिमिटेड के कॉमन कंट्रोल में है, दैट इज सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 तो नंबर 2 के बाजू में क्या लिखेंगे आप शॉर्ट में? टीपी 26% वीपी, यानी थर्ड पार्टी 26% वोटिंग पावर। शॉर्ट में नंबर 2 के शॉर्ट में लिखेंगे टीपी 26% वीपी। नेक्स्ट नंबर 3 लोन क्राइटेरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग। पेज नंबर 2 पे, लोन इज गिवन बाय वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज। लोन इज गिवन बाय वन एंटरप्राइज टू अनदर, और इतनी लोन दे दी कि सामने वाले की 51% बुक वैल्यू ऑफ एसेट की जितनी लोन दे दी। ऐसा क्यों प्यार आ गया आपको किसी के ऊपर? लाओ लोन ले जाओ। इतनी लोन दे दी। हाउ मच? इट इज नॉट लेस देन, अंडरलाइन करें, 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ ईच एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज। समझ में आया? तो आप लिखे वहां थर्ड में, लोन 51% ऑफ टोटल एसेट, टी है शॉर्ट में, लोन 51% ऑफ टी है। तो ये दोनों एंटरप्राइज क्या कहलाएंगे? आपको समझ में आ रहा है? ये भी कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है? कैपिटल क्राइटेरिया। फंड दिया, बराबर, पहले इक्विटी दी, यहां क्या दिया? लोन, फिर गारंटी क्राइटेरिया। दैट इज ऑल्सो यूर हेल्पिंग इन देयर कैपिटल, उनको बोरो करने के लिए। अब कोई फॉरेन कंपनी हो, कोई इंडियन कंपनी की लोन चल रही है यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और फॉरेन कंपनी बोलती है कोई बहुत सबसे बड़ी कि मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ, और डेफिनेटली कोई ऐसे तो गारंटी नहीं देगा, कुछ तो उनका रिलेशन होगा। तो वहाँ उन्होंने लिख दिया 10% ऑफ टोटल बोरोइंग। तो मान लो इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2,000 करोड़ बोरो किया, उसका 10% कितना होगा? 200 करोड़। अब फॉरेन कंपनी ने 200 करोड़ की गारंटी दिया, 500 करोड़ की गारंटी ली, दैट मीन्स दे आर कॉल्ड विच एंटरप्राइज? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो बाजू में लिख दीजिए गारंटी 10% ऑफ टीबी, शॉर्ट में गारंटी 10% ऑफ टीबी। टीबी मीन्स टोटल बोरोइंग। बैठ रहा है ना आपके दिमाग में ये? सीरियल नंबर 5, अब शुरू हो गया मैनेजमेंट क्राइटेरिया। ये कोई पूरी तरह से नहीं पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गवर्निंग बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय होम? अदर एंटरप्राइज। तो लोग क्या पढ़ते हैं? मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंस्टीट्यूट ने जो भी सवाल पूछे इसके पर ही पूछे कि 7 डायरेक्टर थे, उसमें से 4 डायरेक्टर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करने के राइट्स हैं। जैसे यही एग्जांपल में 26% भूल जाए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और ऐसा दिया गया है कि बी लिमिटेड के अंदर 7 डायरेक्टर हैं, उस 7 में से 4 डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? ए लिमिटेड। और ए लिमिटेड ने अपॉइंट कर दिए 4, तो आर दे एसोसिएटेड? मान लो बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, लोन नहीं है, इक्विटी नहीं है, लेकिन बी में 7 डायरेक्टर में से कितने? ए 4 अपॉइंट कर देता है, देन इट विल फॉल इन सीरियल नंबर 5। मोर देन हाफ में
किसी का क्वेश्चन था, सर 7 के आधे तो 3.5 होंगे, तो 3.5 डायरेक्टर कहाँ से ढूंढे? तो कोई बात नहीं, ठिंगुजी डायरेक्टर ढूंढ लो जिसकी हाइट कम है, 3.5 जैसी है, ठीक है ना? यू हैव टू सी फुल नंबर देन फाइनली ऑन हायर साइड, ठीक है? बस लोग यही पढ़ते हैं 5 नंबर पे। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक कॉमा आने के बाद सीरियल नंबर 5 में और 1 और मोर ईडी लिखा है। गुड इवनिंग, क्या लिखा है? 1 और मोर ईडी। अब इसको लेकर किसी ने सवाल नहीं पूछा। जिस दिन पूछ लिया 50% स्टूडेंट तो फेल ही हो जाएंगे इस सम को लेकर ही। अब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, कान खोल के सुने। 7 डायरेक्टर हैं, कितने? बी लिमिटेड में टोटल 7 डायरेक्टर हैं और ए लिमिटेड ने एक ही डायरेक्टर अपॉइंट किया, और वो कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो भी ये कंडीशन फुलफिल होगी। फिर आपको मोर देन हाफ देखने की जरूरत नहीं है, और लिखा है और 1 और मोर ईडी। समझ में आया? तो एक अकेला ईडी अपॉइंट कर दिया, देन ऑल्सो दे आर कॉल्ड व्हाट? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टर का ही क्राइटेरिया देखते हैं, लेकिन ईडी तो भूल ही जाते हैं। तो बी केयरफुल, बिकॉज नोबडी ड्राफ्टेड द सम, दैट्स व्हाई नोबडी इज टेस्टिंग यू। बट वेन एवर दे विल टेस्ट, स्टूडेंट्स विल डेवलप बेटर टेस्ट। फिर फैकल्टी पढ़ाएगी इसको। वहां भी आप ध्यान से देखेंगे, हर एक सब टॉपिक की, हर एक क्लोज की अलग अलग लैंग्वेज है। आप ध्यान से देखेंगे सीरियल नंबर 5 पे वहां लिखा है मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और 1 और मोर ईडी आर अपॉइंटेड लिखा है। आप कुछ कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके थे, उसमें राइट टू अपॉइंट इज ऑल्सो ए कंट्रोल। हियर इट इज नॉट लाइक दैट। ये राइट टू अपॉइंट नहीं कवर किया, क्या कवर किया? आर एक्चुअली अपॉइंटेड। दैट मीन्स दे टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जाम में ऐसा दिया है कि बी लिमिटेड के 7 डायरेक्टर हैं एंड ए लिमिटेड कैन अपॉइंट 4 डायरेक्टर्स, बट इट हैड एक्चुअली अपॉइंटेड 2 डायरेक्टर्स। तो आर दे एसोसिएटेड? आंसर इज नो। लॉ सेज दे आर अपॉइंटेड, मीन्स देयर शुड बी ए पॉजिटिव एक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉट ओनली राइट टू अपॉइंट इज देयर। तो वहां भी आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल लिख दिया, आप तो खुश हो जाएंगे, 7 का अर्धा करो, 1/7/2, 3.5, 4 अपॉइंट कर सकता है, तो दे आर कॉल्ड व्हाट? तो राइट टू अपॉइंट इज नॉट कवर्ड, एक्चुअल अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो सीरियल नंबर 5 के बाजू में लिखे 1/2 BOD ऑब्लिक 1 ED, तो गलती ना हो, 1/2 BOD ऑब्लिक व्हाट? 1 ED। अगर वो अपॉइंट करने के पावर्स हैं, देन दे आर कॉल्ड व्हाट? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। क्लियर? नेक्स्ट सीरियल नंबर 6 बाजू में लिख दीजिए थर्ड पार्टी BOD ऑब्लिक ED, यानी कोई थर्ड पर्सन है, जैसे मुकेश अंबानी जी है, ही कैन अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड एंड मुकेश अंबानी कैन ऑल्सो अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ व्हाट? बी लिमिटेड, देन ए एंड बी आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एसोसिएटेड। तो बाजू में लिख दीजिए सीरियल नंबर 6 में थर्ड पार्टी BOD ऑब्लिक ED। सीरियल नंबर 7 अब कंट्रोल क्राइटेरिया शुरू हो गया कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग अंडरलाइन करें इज होली डिपेंडेंट ऑन नो हाउ, पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जंप ऑन लास्ट 2 लाइन्स ऑफ विच अदर एंटरप्राइज द ओनर और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अदर एंटरप्राइज हैज गॉट विच राइट? एक्सक्लूसिव राइट्स। बैठा दिमाग में? जैसे मैंने बताया ना, पेप्सी ने यहाँ पेप्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खोल दी, चलो कोई कैपिटल नहीं लगाई, लेकिन नोहाउ किसने दिया? पेप्सी INC ने। तो नोहाउ देना मीन्स पेप्सी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है किसके ऊपर? नोहाउ, जिसका अदर एंटरप्राइज क्या है? ओनर। देन दे आर कॉल्ड विच एंटरप्राइज? एसोसिएटेड। तो बाजू में लिख दीजिए इंटेंजिबल एसेट क्राइटेरिया। सीरियल नंबर 8 आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका 90% रॉ मटेरियल आर सप्लाइड बाय अंडरलाइन कर अदर एंटरप्राइज। तो सीरियल नंबर 8 के बाजू में शॉर्ट में लिखे 90% RM, और कुछ आगे भी लिखा है कि सप्लाई तो वो कर रहा है अदर एंटरप्राइज, लेकिन अदर एंटरप्राइज कब सप्लाई करेगी, किस भाव से सप्लाई करेगी, उसमें कोई और टांगा डाला है। तो जो टांगा डाला है इज ऑल्सो कॉल्ड विच एंटरप्राइज? एसोसिएटेड। तो आगे बढ़े एंड द प्राइसेस एंड अदर कंडीशन relating to supplier influenced by whom?
such other enterprise. तो आप किसी से खरीद रहे हैं लेकिन किसी की डायरेक्शन से खरीद रहे हैं, तो जिसकी डायरेक्शन से खरीद रहे हैं he is also called what? Associated enterprise. Serial number 9, सेल क्राइटेरिया. यहां परसेंटेज नहीं लिखे, पता नहीं क्यों. तो आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यू आर सेलिंग टू अनदर एंटरप्राइज और यू आर सेलिंग टू द पर्सन सजेस्टेड बाय अनदर एंटरप्राइज, और उसकी प्राइस कंडीशंस कौन तय करने वाला है? अदर एंटरप्राइज. तो शॉर्ट में लिख दीजिए सेल क्राइटेरिया. बट मजे की बात यहां कोई परसेंटेज नहीं लिखे हैं. तो अब कोई आदमी मैन्युफैक्चर करेगा, कुछ तो सेल करेगा ना दूसरे एंटरप्राइज को. लेकिन अगर एसोसिएट को सेल किया देन देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी. सीरियल नंबर 10, एक एंटरप्राइज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल एंड दूसरा एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल बाय होम? इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल और जॉइंटली बाय दैट इंडिविजुअल रिलेटिव. एग्जाम्पल, मैं ही यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं अमेरिका, और अमेरिका में मैं ही इंपोर्ट कर रहा हूं. अब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं आप? तो ड्यूअल सिटीजनशिप इज अलाउड. तो मैंने इंडिया में एक फर्म खोल दी मेरे नाम से प्रोप्राइटरशिप में, तो हु इज द कंट्रोलर? आई एम इंडिविजुअल. उसका नाम रख दिया मैंने जलाराम एक्सपोर्ट. अब मैं यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं गारमेंट्स, और मेरी ही एक फर्म है क्योंकि मैं ड्यूअल सिटीजनशिप हूं मेरे पास, अमेरिका में मेरी ही एक फर्म है, उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं. यानी इंपोर्ट कौन कर रही है? अमेरिकन फर्म, जिसका भी कंट्रोलर कौन हूं? मैं या मेरा कोई रिलेटिव. और वहां नाम रख दिया मैंने जैक्सन इंपोर्ट. यहां क्या डाल दिया? जलाराम एक्सपोर्ट. वहां क्या डाल दिया? जैक्सन इंपोर्ट. दोनों का ओनर मैं ही हूं. देन इट इज कॉल्ड सीरियल नंबर 10, इंडिविजुअल कंट्रोल क्राइटेरिया. या मान लो यहां मैं ओनर हूं और वहां मेरा रिलेटिव ओनर है, या मान लो वहां मैंने पार्टनरशिप करके रखी है उसके साथ, तो मैं यहां ओनर हूं प्रोप्राइटरशिप का, और वहां जो फर्म खोली है यूएस में, उसमें मैं और मेरा रिलेटिव ज्वाइंटली काम कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड विच क्राइटेरिया? इंडिविजुअल कंट्रोल क्राइटेरिया. ऐसा ही एचयूएफ का, कि वन एंटरप्राइज इज ओन बाय एचयूएफ, अनदर एंटरप्राइज इज ओन बाय अंडरलाइन करें मेंबर ऑफ एचयूएफ और रिलेटिव ऑफ मेंबर ऑफ एचयूएफ. अब एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया, सर वहां क्यों ऐसा लिखा कि वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय एचयूएफ हियर एंड अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल बाय एचयूएफ देयर? ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो दूसरी कंट्री में एचयूएफ जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, फैमिली कंसेप्ट ही कम है, इसलिए वहां क्या लिखा कि एचयूएफ कंट्रोल नहीं कर रहा है. कौन कंट्रोल कर रहा है वहां? कोई मेंबर या उसका कोई रिलेटिव. तो एक्स आई के बाजू में लिख दीजिए एचयूएफ क्राइटेरिया. एक्स डबल आई, एक एंटरप्राइज फर्म है, एओपी है, बीओआई है, और उसके अंदर दूसरे एंटरप्राइज का अंडरलाइन करें 10% हिस्सा है, 10%. तो बाजू में लिख दीजिए 10% फर्म एओपी बीओआई. थर्टी नंबर बहुत आसान, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि दोनों के बीच में कुछ है, रिलेशनशिप ऑफ एनी इंटरेस्ट. बट लॉ इज से क्लियरली म्यूचुअल इंटरेस्ट. इट शुड नॉट बी वन वे, इट शुड बी व्हाट? म्यूचुअल इंटरेस्ट. तो पहली कंडीशन समझ में आई कि दे आर विच एंटरप्राइज? दे शुड बी एंटरप्राइज मिनिमम हाउ मेनी? 2. दे आर विच एंटरप्राइज? एसोसिएटेड. They must have carried out which transaction? अंडरलाइन करें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. कंडीशन नंबर 3. तब जाके ये चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा. अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो उसके अंदर डीम ट्रांजैक्शन भी है, उसका नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन भी है, वगैरह वगैरह. लंबा है लेकिन आसान है, पढ़ लेंगे हम. चलो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मीन्स फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बिटवीन, अंडरलाइन करें, 2 और मोर एई. तो पहली कंडीशन क्या होगी? पेज 3 पे 2 और मोर एई के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, बट अंडरलाइन करें आइदर और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेसिडेंट. यानी एक पार्टी क्या होनी चाहिए? नॉन रेसिडेंट. एटलीस्ट आइदर वन शुड बी नॉन रेसिडेंट और व्हाट? बोथ. देन एंड देन वी कैन से इट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. बी केयरफुल. अब वो क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? ध्यान से पढ़ें. परचेज, सेल, लीज ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. परचेज, सेल, लीज ऑफ विच प्रॉपर्टी? इंटेंजिबल. टेंजिबल नहीं लिखा उन्होंने. फिर क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो दो एंटरप्राइज सर्विसेज दे रहे हैं एक दूसरे को, या वन टू अनदर और अनदर टू फर्स्ट वन, जो भी. लैंडिंग कर रहे हैं या बोरोइंग कर रहे हैं?
कोई लैंड कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, बोरो. देन दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड विच ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. मची की बात ये है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लिखा, टेंजिबल नहीं लिखा. फिर नंबर 2 तो हाइड कर दी. ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसकी इंपैक्ट होती है बियरिंग ऑन 4 वर्ड लिखे, प्रॉफिट, इनकम, लॉसेस, एसेट. लायबिलिटी नहीं लिखा, एक्सपेंडिचर नहीं लिखा. देखा आपने, प्रॉफिट, इनकम, लॉसेस, एसेट पे असर हो रही है. अब बहुत ऑब्वियस है, आप किसी से गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, आप इंडिया में बैठे हैं और आपकी होल्डिंग कंपनी से आप गुड्स खरीद रहे हैं और आपकी होल्डिंग कंपनी यूएस में है, तो आपकी प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो होगी, आप खरीद रहे हैं तो परचेस नंबर 1 में भी आएगा या बियरिंग ऑन प्रॉफिट में भी आएगा. ठीक है. सीरियल नंबर 3 बहुत कंफ्यूज है लोग कि यार सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है. आपने कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया फॉर अंडरलाइन कर एलोकेशन अपॉर्शनमेंट ऑफ सम कॉस्ट और एक्सपेंस, व्हाई, रिगार्डिंग सम बेनिफिट और सर्विसेज विच इज आइदर प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड. तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, इंडिया में आपने R&D कंपनी खोल दी और R&D के लिए फॉरेनर भी इन्वॉल्व है, फॉरेन कंपनी भी और आप भी इन्वॉल्व है, और ऐसे एक कंपनी खोल दी एंड देन यू डिसाइड दी व्हाट, R&D फॉर फार्मा खोल दी, एलोकेशन अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट और कंट्रीब्यूटिंग टू कॉस्ट और एक्सपेंस. व्हाई, फॉर सम बेनिफिट विच इज आइदर प्रोवाइडेड और व्हाट, टू बी प्रोवाइडेड. तो R&D के बाद जो बेनिफिट निकलेगा आइदर इट इज प्रोवाइडेड अगर निकल आया तब, और द फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे. तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. लेकिन पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टी शुड बी व्हाट, नॉन रेसिडेंट. अब हुआ क्या, कुछ मैटर कोर्ट में गई कि टेंजिबल को क्या करने का, टेंजिबल तो आपने कवर ही नहीं किया. कुछ मैटर कोर्ट में गई कि हमारा ट्रांजैक्शन जो हमने किया, एमालगमेशन किया, डीमर्जर किया, लेकिन उसकी प्रॉफिट, इनकम, लॉसेस पे, एसेट पे कोई असर नहीं हो रही है. अब फ्यूचर में हो सकती है लेकिन आज तो कोई असर नहीं हो रही है. इंडिया का टैक्स आज तो कम नहीं हो रहा है, फ्यूचर में हो सकता है शायद बिकॉज ऑफ आवर अरेंजमेंट. तो ये सारे झगड़े कोर्ट पे गए, इसलिए उन्होंने गुस्सा होकर 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया और इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन डाला. नेक्स्ट पेज पे पढ़े. याद रहे हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं दे हैव टेस्टेड एज अ थियरी. पेज 4 बॉटम, एक्सप्लेनेशन. उसमें लिखा नंबर ए, परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज, यूज ऑफ, अंडरलाइन करे, टेंजिबल प्रॉपर्टी. और उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया. जिस दिन एक्ट आया, ये ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉ आया 2001, यानी एवाई कौन सा था 23, उस तारीख से अमेंडमेंट कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली कि इट इंक्लूड व्हाट, परचेज, सेल, ट्रांसफर, लीज ऑफ व्हाट, टेंजिबल. तो उसके ऊपर स्पेशल टिक करें आप नंबर ए को, जहां भी बोलो उसको ही स्पेशल टिक करें. नंबर बी, परचेज, सेल, लीज, ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल. अब वो तो ऑलरेडी उन्होंने लिखा था, फिर भी उन्होंने रिपीट किया यहाँ एक्सप्लेनेशन में. ठीक है, उसको टिक ना करें. नंबर ए को स्पेशल टिक करें, नंबर बी को टिक ना करें. ठीक है. अब इंटेंजिबल को लेकर पता नहीं उनको इतना प्यारा है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो उन्होंने इंटेंजिबल की डेफिनेशन दी एक्सप्लेनेशन के नीचे, और इतनी लंबी डेफिनेशन दी कि इंटेंजिबल खुद टेंजिबल हो गया. आपको दिख रहा है, आप देखो कितना लंबा डेफिनेशन. अब थैंक गॉड किसी ने पूछा नहीं, लेकिन कोई पागल पूछ सकता है 6 मार्क में. क्यों 6 मार्क, 12 पॉइंट है, 1/2 करेंगे. तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ अंडरलाइन कर ले मेरे साथ. मार्केटिंग रिलेटेड इंटेंजिबल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटेंजिबल, आर्टिस्टिक रिलेटेड इंटेंजिबल, डेटा प्रोसेसिंग रिलेटेड इंटेंजिबल, इंजीनियरिंग रिलेटेड इंटेंजिबल, कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इंटेंजिबल, ह्यूमन कैपिटल रिलेटेड इंटेंजिबल, लोकेशन रिलेटेड इंटेंजिबल. आई लव नंबर जे, गुडविल रिलेटेड इंटेंजिबल. गुडविल खुद इंटेंजिबल नहीं है, पता नहीं, लिखने बैठे फिर थक गए तो लिखा मेथड, प्रोग्राम, सिस्टम, प्रोसीजर, कैंपेन, सर्वे, स्टडी, फोरकास्ट, एस्टिमेट, कस्टमर लिस्ट, टेक्निकल डेटा. फिर एकदम उनको याद आया. नहीं, कभी कभी लोग ज्यादातर बोलते हैं, कभी कभी लड़कियों के बारे में कभी कभी बोलते हैं कि नहीं वो दिखावे में ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है, तो उसके बारे में उन्होंने लिख दिया. लेकिन लड़कियों के बारे में नहीं, कोई भी अलग बात के, एनी अदर आइटम विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कंटेंट रादर देन व्हाट, फिजिकल एट्रीब्यूट. यानी इंटेलेक्चुअल कंटेंट इसके अंदर है, दैट इज स्टिल कॉल्ड व्हाट, इंटेंजिबल. लड़के यहां बैठे माफ करें. रीड नंबर ए को आपने टिक किया, नंबर बी समझ में आया. अब नंबर सी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल फाइनेंसिंग.
तो लैंडिंग बोरोइंग हम पढ़ चुके हैं ना, तो कैपिटल फाइनेंसिंग लंबा लंबा लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लैंडिंग, गारंटी, सब कुछ डाल दिया, तो थोड़ा एनलार्ज कर दिया एक्सप्लेनेशन में। नंबर डी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, वो भी हम पढ़ चुके हैं अर्लियर पेज पे, देखो आप अर्लियर पेज पे, पेज 3 पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या था, परचेज सेल लीज ऑफ इंटेंजिबल, फिर नंबर बी क्या था, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, अब उन्होंने एनलार्ज कर दिया। फिर नंबर ई ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन करें सेकंड लाइन में, इररेस्पेक्ट द फैक्ट कि उसकी प्रॉफिट पे बियरिंग हो रही है नहीं हो रही है, आज हो रही है कि फ्यूचर डेट में होने वाली, वो अब देखना नहीं है, इट इज स्टिल कॉल्ड व्हाट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो आप टिक करेंगे सिर्फ 2, ए एंड ई, बाकी 3 जो है ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में कवर हो चुके हैं। एग्जाम में अब आपको 5 मार्क में पूछे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, कितने मार्क में, 5, तो कैसे लिखनी है, पेज 3 पे जो 1 2 3 है वो 3 लिखने हैं, और पेज 4 पे जो ए एंड ई है, ऐसा मिला के आपको 5 मार्क में क्या लिखने हैं, 5 ट्रांजैक्शन। तो बैठ गया इतना। अब एक डीम ट्रांजैक्शन मैं बोर्ड पे उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था प्रैक्टिकल 1, तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल 1 पे आ जाइए, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो दिस वाज अ जगलरी क्रिएटेड बाय इंडियन प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज वी आर वेरी पावरफुल प्रैक्टिशनर्स, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द वे आउट, वी डोंट वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मगजमारी, कौन ये रिकॉर्ड रखे, कौन प्रूव करे आर्म्स लेंथ प्राइस, ऐसा कुछ कर दो कि ये चैप्टर अप्लाई ना हो। तो ऐसी हमारी प्लानिंग उन्होंने सालों बाद अमेंडमेंट किया, करीबन 10-15 सालों बाद। प्रैक्टिकल 1, ए लिमिटेड रेसिडेंट एंटिटी है, ए लिमिटेड ने एग्रीमेंट फॉर सेल किया ऑफ गुड्स विथ होम, PQR, वो भी रेसिडेंट है, और मैं लिखता हूं शॉर्ट में अनरिलेटेड है, UR, क्या है, P, A लिमिटेड एंड PQR और व्हाट, अनलिमिटेड। PQR ने तो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर दिया है किसके साथ, C इनकॉर्पोरेशन। PQR ने ऑलरेडी किसके साथ एग्रीमेंट कर दिया है, C इनकॉर्पोरेशन, वो नॉन रेसिडेंट है, और PQR एंड C आर ऑल्सो अनरिलेटेड। अब देखो तो A किसको बेच रहा है, PQR को, और PQR ऑलरेडी एग्रीमेंट करके बैठा है किसके साथ, C इनकॉर्पोरेशन जो नॉन रेसिडेंट है, और PQR और ये क्या है, अनरिलेटेड। चलो पहले मुझे बताओ, A टू PQR क्या ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लाई हो सकता है, नो, क्यों, ये ट्रांसफर प्राइसिंग में कंडीशन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की एक कंडीशन क्या थी डेफिनेशन में, वन ऑफ द पार्टी मस्ट बी व्हाट, कौन, नॉन रेसिडेंट, यहां तो दोनों पार्टी क्या है, रेसिडेंट, तो चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई नहीं होगा A और PQR के बीच में। अब PQR किसको बेच रहा है आगे, C इनकॉर्पोरेशन, C और PQR एसोसिएट एंटरप्राइज है, नहीं, दोनों क्या है, एक दूसरे के अनरिलेटेड, तो उनको भी चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एओ ने डिटेल में देखा तो A एंड C आर ऑलरेडी A, यानी A सीधा अगर डील करता, जैसे मैंने मॉरिशस वाला एग्जांपल बताया, अगर A सीधा डील करता C इनकॉर्पोरेशन साथ, तो क्या बन जाता, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती कि दिस ट्रांजैक्शन इज डन एट विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, ये प्रूव करना पड़ता। तो उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला, इंडिया में एक जो प्यून रहते थे उनके नाम की कंपनी खोल दी, ऑफिस में जो प्यून थे ना उनको PQR नाम की 3 होगा, एक पवन होगा, क्यू पे कोई होगा, और एक रावण होगा, पता नहीं, उनकी एक कंपनी खोल दी, और उनको एक, अब प्यून तो डेफिनेटली इस कंपनी से रिलेटेड है ही नहीं, वो तो प्यून है, और ये ट्रांजैक्शन कर लिया। तो इससे गुस्सा होकर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया। तो आपको समझ में आया, ए लिमिटेड क्या आर्ग्यू करती है कि हमारा ट्रांजैक्शन जो हुआ PQR के साथ, इट इज नॉट फॉलिंग अंडर व्हाट, चैप्टर TP। आइडियली अब ए को प्रूव करना पड़ेगा, दे हैव डन ट्रांजैक्शन एट विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस विद PQR। अब उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, पढ़ो दो, 92 बिट 2 सेक्शन है, 92 बिट 2, मैंने सीधा सॉल्यूशन में लिखा है।
पहले मैंने कुछ आगे 3 लाइन लिखी है, बट पूरी बैरेक पढ़ेंगे तो आप थकेंगे, इसलिए बैरेक का मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूशन को ही बैरेक में रखा है, और जो ये हमने बोर्ड पे लिखा है उसको मैंने ब्रैकेट में डाला है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहना चाहते हैं। पढ़े, ऑन रीडिंग ऑफ सेक्शन 92 बिट 2 ए ट्रांजैक्शन, तो यहाँ ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स का, एंटर्ड इनटू बाय एंटरप्राइज विथ ए पर्सन अदर देन ए। तो मुझे बताइए ए एंड PQR ए है, नहीं है, तो क्या लिखा है, एंटर्ड इनटू बाय होम ए लिमिटेड विथ ए पर्सन अदर देन ए, यानी कौन है, PQR, shall be deemed to be a transaction, ए और PQR का ट्रांजैक्शन ऐसा मान लिया जाएगा बिटवीन 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज। बोर्ड पे मुझे बताइए एसोसिएटेड एंटरप्राइज कौन है, ए एंड सी, तो ये मान लिया जाएगा, तो ए और PQR ने डीलिंग किया, लेकिन क्या मान लिया जाएगा, सच ट्रांजैक्शन इज डीम्ड टू बी ए ट्रांजैक्शन बिटवीन होम ए एंड सी। कब, इफ देयर एग्जिस्ट सम प्रायर एग्रीमेंट, तो प्रायर एग्रीमेंट था ही किसका, PQR का सी के साथ, कि गुड्स जो भी आएंगे ए से किसको भेजेंगे, सी को, तो मैंने ब्रैकेट में कहा देयर इज अ प्रायर एग्रीमेंट ऑफ PQR एंड होम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और फिर लिख दिया कि जो अदर पर्सन है PQR वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो रेसिडेंट तो यहां पकड़ लेगी टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने यूएस में एक कंपनी खोल दी अनरिलेटेड, तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि वेदर वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ट्रांजैक्शन क्या मान लिया जाएगा। तो दिस इज सब्सटेंस टेस्ट, आपने फॉर्म ऐसा क्रिएट किया कि आप पकड़ में नहीं आए, लेकिन सब्सटेंस में गए, मालूम पड़ा कि ये ट्रांजैक्शन तो किसके साथ हो रहा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ ही हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, डीम्ड ट्रांजैक्शन। आई थिंक बैठ गया, ये एग्जाम में नहीं पूछा, आई थिंक दिस वाज 2014 अमेंडमेंट। अब कुछ छोटी बात करके हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, उसमें पहले तो कुछ कंडीशन नहीं थी, यानी 2 एंटरप्राइज मिनिमम होने चाहिए, दूसरी दे आर व्हाट, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, थर्ड दे मस्ट हैव कैरिड आउट विच ट्रांजैक्शन। तो किन लोगों की जिम्मेदारी है, उन एंटरप्राइज की जिम्मेदारी है कि देयर डीलिंग इज डन एट विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो नाउ क्वेश्चन में राइज, व्हाट इज कॉल्ड आर्म्स लेंथ प्राइस। तो लेट अस रीड पेज 6, डेफिनेशन इज गिवन अंडर 92F क्लोज नंबर 3, पेज 6। तो लॉ में क्या लिखा है 92C में, इफ कंडीशन इन पैरा नंबर 2 आर सेटिस्फाइड देन एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कंप्यूटेड अंडरलाइन करे हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस। उसी तरह एनी एक्सपेंस शैल आल्सो बी डिटरमाइंड हैविंग रिगार्ड टू विच प्राइस। मान लो आपने आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज से बोरो किया है, तो आपकी कौन सी कॉस्ट हुई, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस वुड आल्सो बी डिटरमाइंड हैविंग रिगार्ड टू विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस। समझ में आया, क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं और जो लैंड कर रहा है वो टैक्स हेवन कंट्री में बैठा है, तो उसको आप 25% इंटरेस्ट देंगे, नहीं तो घर का आदमी ले जा 25%, तो इंडिया की टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस शुड बी आल्सो कंप्यूटेड एट विच प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, पढ़े। आर्म्स लेंथ प्राइस मीन्स अ प्राइस विच इज अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड। दोनों वर्ड लिखा है, either it has already been applied or it is what, proposed to be applied in a transaction between persons. Which kind of persons? Who are not associated, means who are not related, short में. And they are dealing in which situation? Uncontrolled condition. तो 2 unrelated party uncontrolled condition में negotiation करने बैठे और जो भाव तय हो उसको क्या बोलेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। सिंपल, 2 अनरिलेटेड पार्टी टेबल पर बैठे हैं, किसी को खरीदना है किसी को बेचना है, और किसी का एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल कंडीशन है, और जो भाव तय हो उसको क्या बोलेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस। इन शॉर्ट 3 इंग्रेडिएंट, नंबर ए, प्राइस इज आइदर अप्लाइड और व्हाट, प्रपोज टू बी अप्लाइड। नंबर बी, ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ए पर्सन अदर देन एसोसिएटेड। एंड नंबर सी, ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन होम, इन विच कंडीशन, अनकंट्रोल। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं तो जल्दी समझ में आया, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल। आप अभी नसीबदार हैं जहाँ भी आप कोई सिटी एरिया में रहते हैं, बड़े टाउन में हैं आप कहीं भी, जैसे हमारा अहमदाबाद है, तो आप कोई भी बड़े सिटी का एक पक्का रूल है, उसका कोई हिस्ट्री तो होगा ही होगा, और उसका कोई छोटा सा, पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तो कोई छोटी सी कई जगह से ये शहर की शुरुआत होगी, जैसे अहमदाबाद है, तो दुनिया में कहीं भी कोई गांव या शहर बसे तो दे आर ऑलवेज नियर बाय रिवर, क्योंकि वहाँ से पानी मिलना आसान हो जाए।
तो अहमदाबाद का जो मेन सिटी एरिया जो बोलते हैं हमारे यहाँ, इट इज नियर बाय साबरमती रिवर, और वहां एक मार्केट रहता है। ऐसे हर सिटी में होगा कि आपका एक बहुत पुराना ओल्डेस्ट मार्केट मिलेगा, ओल्डेस्ट। फिर धीरे धीरे सिटी बढ़ता गया तो हर जगह छोटी छोटी जगह सारी फैसिलिटी मिलती गई आपको। तो उन दिनों क्या हालत थी 25 साल पहले, कि अगर आपको नेल कटर चाहिए, हैंडकरचीफ चाहिए, तो आपको, अब जहाँ रह रहे हैं एडवांस एरिया में, वहाँ नहीं मिलेगा। आपको कहाँ जाना पड़े, सिटी एरिया में स्पेसिफिक मार्केट रहता है। दिल्ली में जाए तो चांदनी चौक वगैरह स्पेशल मार्केट रहेंगे, मुंबई में जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्पेशल मार्केट रहेंगे, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप जहाँ रहते हैं नज़दीक में, आप नेल कटर ढूंढने जाए तो पसीना बहाना पड़े, आपको मिले ही नहीं, और मिले तो कॉस्ट देकर आपको गुस्सा है कि इतनी सारी थोड़ी कॉस्ट होती है नेल कटर की, हैंडकरचीफ की। आप कुछ टेंशन में है। सर क्या बता रहे हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस का मीनिंग बता रहा हूं। और पहले क्या था, 25 साल पहले हाउसवाइफ ज्यादा थी, तो वो चाहती थी कि मैक्सिमम सी ऑलवेज टेक सेटिस्फेक्शन, कि वो कितना नेगोशिएट करके घर का पैसा बचाए। एंड सी इज ऑल्सो आर्ग्यूइंग इनडायरेक्टली आई एम अर्निंग। आजकल क्या हो गया है, बहनें पढ़ लेती हैं, खुद की कमाई है, वो भी कमा रही है, तो वो इतना नेगोशिएट नहीं करती जितनी 25 साल पहले हाउसवाइफ नेगोशिएट करती थी। और मेल मेंबर तो हिम्मत ही नहीं होती है नेगोशिएट करने की, वो ऐसा फील करता है कि साला इतना नेगोशिएट करूंगा, सामने वाला खाएगा क्या, वो भी कोई मेल मेंबर तो है, उसको भी घर चलाना है। तो हम तो नेगोशिएट कर ही नहीं पाते हैं। फीमेल आज भी करती है, लेकिन जो अर्निंग फीमेल है, जो अर्न कर रही है रेगुलरली, दे हार्डली नेगोशिएट। तो अब 25 साल पुराने बैकड्रॉप में आप चले जाए, अब फीमेल मेंबर वहाँ हैंडकरचीफ लेने गई। अब क्या हुआ कि वहाँ वो रोड पे पूरा बाजार रहता है, तो वहाँ बैठा है हॉकर, स्ट्रीट हॉकर, हैंडकरचीफ देखा, उसने पूछा कि ये भैया कितने में दिया। अब भैया ग्रेजुएट था उस दिन भी, तो उसने कुछ जवाब दे दिया, थोड़ा बहुत, 10वीं कक्षा पास होगा उन दिनों, ग्रेजुएट नहीं, बहुत बड़ी बात होगी ग्रेजुएट, तो इंग्लिश में जवाब दे दिया, मैडम 12 रुपी। तो मैडम तो खुश हो गई, सीधा नेगोशिएशन शुरू, 12 रुपये में डजन। ओ मैडम 12 डजन चाहिए तो 144 होता है। कितना होता है? 144। यू सी द हाउ सी नेगोशिएटेड। 12 पीसीस के उसने 12 रुपये मान लिए। अब ध्यान से सुनना, 144 ऑफर आई किससे? वो स्ट्रीट हॉकर से। अब नेगोशिएशन शुरू हुआ, वो लेडी का 50 रुपये में देने डजन। हम लोग तो 50% नीचे सोच भी नहीं सकते, 72 रुपये बोलते बोलते तो अपने हालत खराब हो जाए। एंड सी स्टार्टेड विथ 50 रुपी, 50 रुपये में डजन देने। अब क्या हुआ, वो क्या बोलेगा, मैडम 120 तो मेरी कॉस्ट है, कहां से मैं दूंगा, सॉरी। व्हाट शी विल डू, शी विल स्टार्ट वॉकिंग। सुनेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे पूरे बाजार में, तो दूसरे को पूछ लेंगे भाई। अब ये टेंशन में आ गया कि ये तो चली गई। अरे अरे मैडम, सुबह सुबह का टाइम, कहाँ कस्टमर को नाराज करना, चलो 120 में ले जाओ, ये साउटिंग। उस लेडी पे कोई असर नहीं। अब वो चिल्ला रहा है 80 रुपए में ले जाओ। अब वो लेडी ने 45 डिग्री टर्न लिया। कितना? सिर्फ 45। 50 में देना है, अगेन स्टार्ट वॉकिंग। अब वो थक जाएगा। अरे मैडम ठीक है, आ जाइए, 50 में ले जाइए, चलो अब सुबह कहाँ कस्टमर को नाराज करना। देन सी विल कम बैक और वो बात करेगी, ठीक है भैया, एक रुमाल दे दो आप। डजन तो लेगी ही नहीं। ये डेफिनेशन है, पढ़ो आर्म्स लेंथ प्राइस की, अब समझ में आई? बहुत आसान। नंबर ए, बोलो, रुमाल की प्राइस तय हुई थी कि करनी थी? इज इट अप्लाइड के प्रपोज टू बी अप्लाइड? प्रपोज टू बी अप्लाइड इन ए ट्रांजैक्शन। नंबर बी क्या है? ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन होम? अनरिलेटेड पार्टी। तो हॉकर एंड दैट लेडी आर व्हाट? अनरिलेटेड। एंड थर्ड, लेडी कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर हॉकर एंड दैट स्ट्रीट हॉकर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर होम लेडी। और जो प्राइस तय हुई, दैट इज कॉल्ड व्हिच प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपने ये पराक्रम कर लिया, यानी कौन सा ट्रांजेक्शन कर लिया? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो भाव लगाया है, खरीदी का हो या सेल का हो, दैट इज नथिंग बट व्हिच प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस। आपकी जिम्मेदारी को रिलीज करने के लिए उन्होंने कुछ मेथड दिए। ये भी थियरी में पूछ लिया है क्या मेथड्स हैं, तो 6 मेथड है। एंड देन वी आर एंडिंग सेशन। 6 मेथड में पहली मेथड है कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जिसको आप कस्टम में कोरिलेट कर सकते हैं आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स वैल्यूएशन में। कस्टम वैल्यूएशन में आइडेंटिकल और विच गुड्स? सिमिलर गुड्स। दूसरी मेथड है रीसेल प्राइस मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएम। कस्टम में आपको मिलेगी डिडक्टिव वैल्यू मेथड,
कस्टम वैल्यूएशन जिसने पढ़ लिया वहां कौन सी मिलेगी? डिडक्टिव वैल्यू मेथड। तीसरी है सीपीएम, कॉस्ट प्लस मेथड। कस्टम में आपको मिलेगी कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। कौन सी? कंप्यूटेड। कस्टम वैल्यूएशन आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, बाद में मालूम पड़ेगा। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पीएसएम बोलते हो शॉर्ट में। पांचवी है टीएनएमएम मेथड, दैट इज ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। और लास्ट में लिखा है ऐसी कुछ मेथड हम प्रिस्क्राइब करेंगे, 10 साल बाद उनको याद आया, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, आज भी लोग कंफ्यूज है कि मेथड है कि क्या है। तो ये 6 मेथड है, 6। ये आपको थियरी में पूछ लिया 3 मार्क में, आपको नाम लिखने हैं कौन सी मेथड्स अवेलेबल है। तो आई थिंक वी शुड टेक इट टुडे दिस मच। थैंक यू।